Welcome back from Mentor English. Myself, motivational speaker, leadership business coach, master trainer, language trainer, blogger, novelist, Professor Raza. Today, I am going to share additional and critical study of the page 25, PTB, Punjab Textbook, English class 6th, page number 25 or 25th. And here we can discuss particular about writing skills, and then I will give you the Urdu translation along with Urdu important points. So learn it. Exclamation mark is used with the sentence which shows some strong emotions or feelings. For example, wow, the kitten is so cute. Ouch, it's hurting me. It's hurting me. Writing skill. Read the following narrative paragraph. It was the month of August, and white and green buntings and flags were seen everywhere. Students were excited in schools and were preparing for Independence Day celebrations. I was very excited when I returned home from our schools. I shared with my there must be I returned our schools, and that's a single. There must be our school, and s should be. There might be an addition, an unwanted addition, I think so. I shared with my mother that our schools, so it would be a apostrophe. Yes, we can put here apostrophe to remove the unwanted additions. I shared with my mother that I had taken part in a speech competition which was going to be held on 14 August in my school. It was my first speech ever. Several other schools were also initiative to take part in our Independence Day activities. I asked my mother for help in writing the speech. My mother took me to visit my grandfather, who was a retired army officer and had experienced many battles for our country. My grandfather shared very useful information with me. I was really impressed with the stories he shared. After that, he told me how to write my speech in my own words. I promised my grandfather to be a good patriot, and I wrote an amazing speech for which I also won a prize that day. I promised myself to fight for my country when needed. Write a few paragraphs about a time when you met your best friend for the very first time. Explain exactly where and when it happened, place and what occurred. Use the strategies of brainstorming and mind mapping. Use vivid and interesting words to make your writings lively. Use correct capitalization, punctuation, and spellings by using pre-writing strategies. Use pronoun, antecedent, relationship, and transitional devices with your paragraph. Use a chronological order of arranging details. Here are some guidelines to follow while writing a narrative. Planning. Think about the following questions. What is the topic of the narrative paragraphs? So page number 25th is completed here. So as we have got all the knowledge that first of all there is some important points, and there is a punctuation point which we have discussed in by the point of exclamation mark. So now let's sum up all this in particular Urdu, and
राइटिंग स्किल्स, लिखने की महारतें। रीड द फॉलोइंग नैरेटिव पैराग्राफ, पढ़िए दिया हुआ नैरेटिव पैराग्राफ। नीचे जो लिखा हुआ पैराग्राफ है, नैरेटिव पैराग्राफ अमूमी तौर पे आप एस्से टाइप जो पैराग्राफ होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। वैसे नरेट का मतलब होता है बयान करदा, तो हम यहाँ पे जो है ना वो ये भी कह सकते हैं कि नीचे झैल में बयानिया जो पैराग्राफ है उसे पढ़िए। इट वाज़ द मंथ ऑफ अगस्त, ये अगस्त का महीना था। एंड वाइट एंड ग्रीन बंटिंग्स एंड फ्लैजेस, सफ़ेद और सब्ज़ या सब्ज़ और सफ़ेद झंडियाँ और झंडे वर सीइंग एवरीवेयर, हर जगह पर नज़र आ रहे थे। स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड, बच्चे बहुत ज़्यादा पुरजोश थे इन स्कूलों के अंदर। एंड वर प्रिपेयरिंग फॉर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, और तैयारी कर रहे थे 14 अगस्त मनाने की। इंडिपेंडेंस डे जश्न आज़ादी या 14 अगस्त, सेलिब्रेशन मनाना। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड, मैं भी बहुत पुरजोश था। व्हेन आई रिटर्न होम, जब मैं घर पहुंचा। फ्राम आर स्कूल्स, यहाँ पर जो है वो ये एस चूँकि अगर इसको रखना हो, मैं टीचर्स के लिए ये बात बता दूं तो यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी जो है वो, लेकिन वो भी एक लिहाज से गैर ज़रूरी हो जाता है। उसकी रीज़न ये कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली जुमला जो है वो हमारा मुकम्मल हो रहा है और बड़े बेहतरीन अंदाज में। तो मेरे ख्याल से ये कातिब की गलती है और किताबत का शाहकार है कि उन्होंने जो है ना वो आर स्कूल यहाँ पर जो है ना वो हो सकता है, या फिर अगर इसमें जो है ना सेंस या सीक्वेंस पैदा करना हो तो बतौर राइटर ये सीक्वेंस पैदा किया जा सकता है कि मुमकिन है कि आर स्कूल्स आया है तो यहाँ पर एक जमा के एतबार से जो है उन्होंने इसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया हो आर के साथ। लेकिन मेरे ख़्याल से यहाँ पर चूँकि पीछे आपका फ़ाइल सिंगल है, तो जब फ़ाइल सिंगल है तो मफ़ूल जो है वो आपका प्लूरल नहीं हो सकता। ठीक है, तो रेयर केसेस के अंदर भी जाकर मैंने आपको बताया कि इसको या तो अपॉस्ट्रॉफी के अंदर आप लेकर जाएं या फिर इसको जो है वो आप इसके साथ बयान करें, तो फिर अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि इसकी क्या कंडीशन हो या इसके सीक्वेंस जो है वो। अब बुनियादी तौर पे मैंने आपको इसके सारे एंगल समझा दिए और ये मैंने आपको रीज़निंग दी है बतौर टीचर कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है वो छठी क्लास का बच्चा इतना जो है वो गहरा सवाल कर सकता है, लेकिन अगर करे तो आपके पास जो है उसके लिए मुकम्मल तौर पर सामान मौजूद होना चाहिए। इन अ स्पीच कंपटीशन, एक आई शेयर्ड विद माई मदर, मैंने अपनी वालदा के साथ जो है वो शेयर किया या उन्हें बतलाया। यहाँ पर शेर का माना, शेर के ये जो है वो कसीरुल माना लफ्ज़ है, तो बुनियादी तौर पे इंग्लिश के अंदर जो शेर का करना का मतलब होता है बतला देना, दे देना, हिस्सा देना, हर एतबार से जो है ना वो। तो यहाँ पर हम इसका जो है ना वो माना कर रहे हैं बतलाया। दैट आई हैड टेकन पार्ट, के मैं हिस्सा ले चुका था। इन अ स्पीच कंपटीशन, एक जो है वो तकरीरी मुकाबला में, विच वॉज गोइंग टू बी हेल्ड, जो मुनक्कद होने जा रहा है, गोइंग टू बी हेल्ड मुनक्कद होने जा रहा है, ऑन 14 अगस्त इन माई स्कूल, 14 अगस्त मेरे स्कूल के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि माई जो है वो सिंगुलर जो है वो प्रोनाउन है, तो उसके बाद जो है ना स्कूल आया है, तो यहाँ पर भी जो आवर स्कूल्स लिखा हुआ है इसके अंदर जो है वो एस वो किताबत का शाहकार हो गया या कंपोजिंग की भेंट चढ़ गया है। इट वाज़ माई फ़र्स्ट स्पीच एवर, ये मेरी पहली जो है वो ज़िंदगी की तकरीर होगी। एवर यानी जो कभी मैं करूँगा या मैं कर पाऊँगा या मैंने जिसके अंदर हिस्सा लिया होगा। सेवरल अदर स्कूल्स, कई दीगर जो है वो स्कूल, वर आल्सो इन्वाइटेड, उन्होंने हिस्सा लिया, टू टेक पार्ट इसके अंदर यानी इन आर इंडिपेंडेंस डे एक्टिविटीज़। कई और स्कूलों ने भी जो है वो इस 14 अगस्त की जो जश्न आज़ादी की तकरीब है इसके अंदर जो है वो हिस्सा लिया हुआ था। आई आस्क माई मदर पार्डन मी आई आस्क माई मदर, मैंने अपनी वालदा से कहा, फॉर हेल्प मदद के लिए, इन राइटिंग द स्पीच तकरीर लिखने के लिए। माई मदर, मेरी वालदा, टुक मी टू विज़िट, वो ले गई मुझे टू विज़िट माई ग्रैंडफादर, अपने जो है वो
दादा के पास या नाना के पास, इसमें एक तोजी ये की जाती है कि अगर वालिदा लेकर जा रही हैं तो अमूमन नाना की तरफ निस्बत की जाए, और अगर जो है वो वालिद लेकर जा रहे हैं तो दादा की तरफ निस्बत जो है वो की जाए। लेकिन इसमें दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, वो ये है कि ये कोई हतमी जो है ना वो नहीं है, ठीक है। तो जो है वो कि दादा की बात की जा रही है या नाना की बात की जा रही है। बुनियादी तौर पे ग्रैंड पेरेंट्स की बात की जा रही है, यानी वालदैन से बड़े, तो उसमें फिर जो है ना वो दादा दादी नाना नानी दोनों जो है ना वो आते हैं। हु वाज अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, जो कि एक जो है वो रिटायर्ड फ़ौजी अफसर हैं, एंड हैड एक्सपीरियंस्ड, और उन्हें जो उन्होंने जो है वो या उन्हें एक्सपीरियंस है या उन्होंने जो है वो उन्हें तजर्बा था मैनी बैटल्स, कई जंगों का, फॉर आर कंट्री, जो उन्होंने इस मुल्क के लिए जो है वो लड़ी। माई ग्रैंड फादर शेयर्ड वेरी यूज़फुल इंफॉर्मेशन विद मी, मेरे नाना या मेरे दादा ने बड़ी शानदार इंफॉर्मेशन मेरे साथ जो है वो शेयर की। अगर हम चूँकि हम माँ से निस्बत करके ला रहे हैं तो नाना बयान कर दीजिए, और बुनियादी तौर पे जो है वो अगर बेटे की तरफ से निस्बत करके लाएंगे तो फिर दादा भी जो है ना वो बयान किया जा सकता है, क्योंकि अमूमी तौर पे जो दादा की जो ज़ात होती है हमारे यहाँ स्पेशली वो घर के जो है ना वो मेन या बड़े जो है वो उसके तौर पे आप कह लीजिए कि सरपंच के तौर पे या बड़े बुज़ुर्ग के तौर पे जो है वो मोतबर रहनुमा के तौर पे हमारे यहाँ अमूमी तौर पे दादा जो होते हैं वो और जो पोता होता है उसके साथ एक रिलेशन है हमारे यहाँ अमूमी तौर पे दादा पोता का। तो लेकिन चूँकि इसमें बीच में वालिदा का ज़िक्र आ रहा है तो वालिदा की निस्बत मैंने जो है वो नाना की तरफ की है। बाकी आप इसको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इतने गहरे नहीं हैं कि जी इसके मुताबिक आपने इसको बयान करना है तो कोई जो है वो, लेकिन आप इंफॉर्मेशन जो है वो 6 क्लास का बच्चा है तो दोनों दे देंगे कि बेटा इससे मुराद दादा भी होता है नाना भी होता है। आपका इंटेंशन या आपका इरादा या आपकी गुफ्तगू का महवर बताएगा कि आप दादा की बात कर रहे हैं या नाना की बात कर रहे हैं। जी, इंफॉर्मेशन विद मी, इतलात व मालूमात मेरे साथ। आई वॉज़ रियली इम्प्रेस्ड, मैं बहुत ज़्यादा जो है मुतासर था विद द स्टोरीज़, उन जो है वो कहानियों से ही शेयर्ड जो उन्होंने मेरे साथ जो मुझे बतलाई। आफ्टर दैट, इसके बाद ही टोल्ड मी हाउ टू राइट माई स्पीच इन माई ओन वर्ड्स, फिर उन्होंने मुझे बताया कि अपनी तकरीर जो है वो अपने अल्फाज में कैसे लिखनी है। आई प्रॉमिस्ड, मैंने वादा किया, माई ग्रैंड फादर, अपने जो है वो दादा से या अपने नाना से, टू बी अ गुड पैट्रियट, कि मैं एक अजीम जो है वो मुहिब वतन बनूँगा। एंड आई रोट एन अमेजिंग स्पीच, मैंने एक बहुत ही शानदार जो है वो तकरीर लिखी। फॉर विच आई आल्सो वन अ प्राइज़, जिस पर मैंने जो है वो एक इनाम भी जीता। दैट डे, उस दिन, आई प्रॉमिस माई सेल्फ, मैंने अपने आप से वादा किया, टू फिगर फॉर माई कंट्री व्हेन नीडेड, कि मैं अपने लिए, मैं ख़ुद को मुल्क के लिए जो है ना वो पैमा करूँगा, ख़ुद को जो है वो मैं मुल्क के लिए पैकार करूँगा, मुल्क के लिए तैयार करूँगा, और जब ज़रूरत होगी तो मुल्क के लिए जो है वो कुर्बानी दूँगा। अच्छा जी, उसके बाद है जी राइट अ फ्यू पैराग्राफ्स, के चंद पैराग्राफ लिखिए अबाउट अ टाइम, एक ख़ास वक्त के बारे में, व्हेन यू मेट, जब आप मिले, जो योर बेस्ट फ्रेंड, अपने जो है वो अज़ीम दोस्त से या सबसे बेहतरीन दोस्त से, फ़ॉर द वेरी फ़र्स्ट टाइम, पहली मरतबा। अब इस पैराग्राफ के अंदर जो है ना हमने क्या क्या कुछ लिखना है उसको पहले एक्सप्लेन, वाज़े करना है, एग्जैक्टली वाज़े तौर पर, वेयर एंड व्हेन इट हैपन, के कब और कहाँ ये हुआ, प्लेस एंड व्हाट अकर्ड, और क्या हुआ था, यानी वाक़या क्या हुआ था। यूज़ द स्ट्रेटजीज़, उन स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल करना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, जो कि जो है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग के काम आती हों, दिमाग की जो है वो बेहतरी के और दिमाग की ताकत को बेहतर इस्तेमाल करने के काम आती हों। एंड माइंड मैपिंग, और जिनसे इंसान जो है वो माइंड को मैप कर सके, यानी कि वो दिमागी तौर पर या सलाहियतों के एतबार से बहुत बेहतर हों, या सलाहियतों को बरूए कार लाने के एतबार से बहुत बेहतर हिकमत अमली हो, स्ट्रेटजीज़ हिकमत अमली। यूज़ विविड एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स, आला और शानदार अल्फाज का इस्तेमाल कीजिए। वर्ड्स टू मेक योर राइटिंग्स लाइवली, अपने जो है वो
जुमलों को वाज़े और बेहतर करने के लिए यूज़ करेक्ट कैपिटलाइजेशन, दुरुस्त जो है वो बड़े अल्फाज इस्तेमाल कीजिए, पंक्चुएशन बेहतर इस्तेमाल कीजिए, एंड स्पेलिंग्स और जो है वो हरूफ तहज्जी स्पेलिंग्स अल्फाज के जो हरूफ हैं उनको बेहतर अंदाज से इस्तेमाल कीजिए बाय यूजिंग प्री राइटिंग स्ट्रेटजीज़, दोबारा से लिखने की हिकमत अमली के तहत। यूज़ प्रोनाउन एंटीसीडेंट्स रिलेशनशिप, प्रोनाउन और यानी इस्मुल फ़ाइल और उसके जो मुतल्लिकात हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, एंड ट्रेडिशनल डिवाइसेस और ट्रेडिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल कीजिए। ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो है बहुत डिटेल से मेंटोर इंग्लिश प्रोफेसर एम रज़ा पे पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ है, और ट्रेनिंग सेशन में भी जो है ना वो ये लेक्चर यानी पॉडकास्ट जो ट्रेनिंग सेशन है उसके अंदर भी, और ट्रेनिंग सेशन प्लेलिस्ट के अंदर भी ये आपको तफसील से मिल जाएगा। डिवाइस विद इन योर पैराग्राफ, अपने जो है ना पैराग्राफ के अंदर यूज़ क्रोनोलॉजिकल आर्डर ऑफ अरेंजिंग डिटेल्स। क्रोनोलॉजिकल आर्डर का मतलब ये होता है कि तारीख़ी एतबार से एक चीज़, एक दुर्घटना, एक जो है वो मामला हुआ तो उसको आप कैसे जो है वो इन डिटेल उसके तरतीबवार जो जितनी भी जो उसकी तफासील या तफसीलात होंगी उनको आपने बयान करना है। और अगर आप मेरे जो है वो इंग्लिश लिटरेचर के लेक्चर्स में स्पेशली ओथेलो की जो मैंने पढ़ाई करवाई हुई है उसके अंदर टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए भी, उसके अंदर आपको ये चीज़ जो है ना इन डिटेल जो है वो मिल जाएगी। और उसके बाद है जी, हेयर आर सम गाइडलाइंस टू फॉलो वाइल राइटिंग अ नैरेटिव प्लानिंग। ये जो है ना वो नीचे कुछ प्लानिंग दी हुई है जिसको आपने इस्तेमाल करना है अपनी जो है वो नैरेटिव्स को जो है वो इस्तेमाल करने के लिए। और जो है वो थिंक अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दिए हुए सवालात को आपने डिटेल से बयान करना है, और उससे नैरेटिव प्लानिंग जो आपकी कंप्लीट होगी। व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ द नैरेटिव पैराग्राफ, कि नैरेटिव पैराग्राफ का जो है वो टॉपिक क्या है। तो ये हमारा आज का लेक्चर का जो है ना वो वक्त तवील हो गया, तो 25 नंबर सफ़ा मुकम्मल हुआ। 26 नंबर सफ़ा की पढ़ाई के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। ये चैनल हमारा इंग्लिश की जो है वो सर्विसेज के लिए, इसके अलावा उर्दू की सर्विसेज के लिए हमारा चैनल प्रोफेसर मुर्शद उर्दू प्रोफेसर एम रज़ा है, और इसके अलावा हमारा चैनल जो है वो इस्लामियात, दीनियात और लॉजिक, फ़िलासफ़ी, मंतक, फ़लसफ़ा और क्लासिकल इस्लामिक साइंसेस के लिए जामे दारुल उलूम शेखुल इस्लाम है। तो उम्मीद है वासे कि आपने सब्सक्राइब किया होगा और बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस किया होगा। लेट मी गो नाउ एंड से विद मी, डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी, डू समथिंग मोर फॉर नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। हैव अ गुड डे।